हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। सो दोस्तों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद वन मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 12th and the topic is continuity and differentiability. So in this topic we are starting with how to identify the given function is continuous, and we will discuss the definition of continuous functions, and we will see if the graph of the continuous function or discontinuous function is given, so how can we identify the function is continuous or discontinuous by just looking at it. So in this chapter we are going to discuss the questions from different books, and mainly questions will be from NCERT. So we'll start with it and let's try to solve all the questions based on that. तो चलो start करते हैं. So let's start and try to solve as many questions as possible from the given topic. Okay. So here we have definition of a continuous functions, like if we can draw the graph in one stroke. So if you can draw the graph of the function in one stroke, we can say the given function is a continuous function. ठीक है. So we'll see how we can draw. So like suppose we are given a coordinate, we are given a graph, and so if we need to draw a graph, like suppose this is a graph, and if you can see that the graph is drawn without lifting the pen from the plane of the paper. So by just looking at the graph, so how can we say that the graph is continuous? So if the graph is drawn without lifting pen from the plane of the paper, so we can say the function is continuous. Okay, and there is one more definition, like if we can draw the graph of the function around that point without lifting the pen from plane of the paper. So if we are talking about a particular point, ठीक है, and in the limits we have seen that if we are talking about a point, like if the limit of the function exists at a point or not, so we do not look at we just look at the point, and as well as we look at the point nearby it. जैसे just उसके just पहले वाला, अगर हम if you are trying to talk about the point limit of the function at point x is equal to 1, तो अगर 1 की बात कर रहे हैं तो 1 से just छोटी वैल्यू लेंगे, और just छोटी वैल्यू से मतलब क्या होगा 0.999, और just बड़ी वैल्यू लेंगे तो just बड़ी भी कितनी बड़ी, यानी 1.01 1.001. So this kind of values will be हम चेक करेंगे, है ना. और अगर हमें मैथमेटिकली प्रूव करना है, एल्जेब्रिकली प्रूव करना है whether the given function is continuous or not, तो उसके लिए 3 steps हैं. There are 3 steps which we need to follow to find if the function is continuous or not. ठीक है. So चलो स्टार्ट करते हैं. एंड माय नेम इज गौरव त्यागी. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो. जिन लोगों ने भी ज्वाइन किया है तो प्लीज टेल योर फ्रेंड्स दैट दे कैन ज्वाइन एज वेल. ठीक है. एंड लेट्स स्टार्ट विद इट. There are 3 conditions. The first one is the function has to be defined at the given point. अगर हम किसी भी पॉइंट की बात कर रहे हैं, the function fx has to be defined at the given point x is equal to a. ठीक है. We are talking about a general point. Suppose this is a point a, ये अगर ये point a है, so we'll discuss about the continuity of the function at this point, general point a. ठीक है. और similarly the function has to be exist at the given point and limit of the function should exist. So limit of the function should exist का मतलब क्या है? The left hand limit should be equal to right hand limit. Left hand limit और right hand limit equal होनी चाहिए. ठीक है. जैसे हमने अब डिस्कस किया था, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है? The value just less than the given point. या अगर हम a की बात कर रहे हैं, 1 की बात कर रहे हैं, तो 1 से जस्ट छोटी वैल्यू, बहुत बड़ी छोटी वैल्यू का मतलब 1 से जस्ट छोटी वैल्यू का मतलब 0.999, और जस्ट बड़ी का मतलब 1.001. बहुत बड़ी भी नहीं और बहुत छोटी भी नहीं. ठीक है. And third condition that need to be hold true, that the limit of the function at the given point should be equal to the value of the function at given point. तो ये 3 condition है, three conditions, all 3 condition need to be met. First is the function should exist at the given point. Second is the limit of the function should exist, means left hand limit should be equal to right hand limit. Third is the limit should be equal to the value of the function at the given point. ठीक है. और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में कैसे निकालेंगे, दैट वी हैव डिस्कस इन द क्लास 11th, एंड विल सी इट हाउ वी कैन फाइंड आउट इन दिस वीडियो एज वेल. ठीक है. वो भी आज इस वीडियो में भी सीखेंगे. ठीक है. और इसको अगर और प्रॉपर डेफिनेशन लिखें, लाइक इफ द लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू c एग्जिस्ट एंड इक्वल टू ईच अदर, देन वी कैन से द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट द पॉइंट c. और एक डिफरेंट वे ऑफ राइटिंग एक given equation, a function is continuous at x is equal to c if the function is defined at x is equal to c. पहली चीज डिफाइंड भी होना चाहिए, वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल्स द लिमिट ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू सी, यानी लिमिट भी एग्जिस्ट होनी चाहिए और उसकी जो वैल्यू है वो लिमिट के
इक्वल होनी चाहिए. सो दीज आर द थ्री कंडीशंस by which we can find if the given function is continuous mathematically. Okay, and if you need to say whether the given function is continuous or not graphically, so we can simply say if there is no gap in the function, there is no break in the function, like if the function is if the graph is drawn by without lifting the pen from the plane of the paper, then we can say the graph is continuous. ठीक है, चलो. Now there is algebra of continuous function, like if we have two continuous function given to us. अगर दो continuous function है तो उसमें कैसे पता करेंगे कि भाई ये दोनों function continuous हैं कि नहीं है. तो अगर मान लो हमें दो function continuous given है, अगर हमें given ही है दो function, बोला गया है कि ये दोनों function continuous है, अब बताइए कि इसका addition, subtraction, multiplication और division क्या वो भी continuous होगा कि नहीं होगा? हाँ जी होगा. अगर दो फंक्शन है और दोनों का आपने ऐड किया है, सो इफ द टू फंक्शंस आर एडेड टुगेदर देन देयर द रिजल्ट ऑफ द फंक्शंस विल बी रिजल्टिंग फंक्शंस विल बी कंटिन्यूअस एज वेल. सिमिलरली इफ द टू फंक्शन इज सब्ट्रैक्टेड तो जो डिफरेंस होगा दैट विल बी कंटिन्यूअस. डिफरेंस फंक्शन जो होगा, जो भी रिजल्ट आएगा हमारा, दैट विल बी कंटिन्यूअस. मल्टीप्लाई में भी सेम है एंड डिवीजन में भी द ओनली कंडीशन इज द डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो. द डिनोमिनेटर ऑफ द फंक्शन शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो. ठीक है. एंड देयर इज वन मोर थ्योरम, लाइक इफ यू हैव ए कंपोजिट फंक्शन एफ ऑफ जी, तो अगर एफ एन जी रियल वैल्यूड फंक्शन है तो एफ ऑफ जी अगर डिफाइंड है, ठीक है, जिसमें जी भी कंटिन्यूस है और एफ भी कंटिन्यूस है, तो एफ ऑफ जी भी कंटिन्यूस होगा. ठीक है, अगर एफ ऑफ जी डिफाइंड है, एफ भी कंटिन्यूस है, जी भी कंटिन्यूस है, तो एफ ऑफ जी भी कंटिन्यूस होगा. तो दिस इज ऑल्सो ट्रू. सो दीज टू इंपॉर्टेंट थ्योरम्स we will keep in mind while solving the questions based on continuity of the function. ठीक है, तो continuity of the function में क्या है, अगर ग्राफ दे रखा है तो without lifting pen from plane of the paper, यानी बिना पेन उठाए अगर ग्राफ बना है तो कंटिन्यूस है. एल्जेब्रिकली या मैथमेटिकली जब हम देखेंगे तो भाई पहले देखेंगे कि फंक्शन उस पॉइंट पर एग्जिस्ट करता है कि नहीं है, दूसरा देखेंगे कि उस फंक्शन पर लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं है, और थर्ड देखेंगे कि लिमिट ऑफ द फंक्शन एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द गिवन पॉइंट शुड बी सेम, इक्वल होनी चाहिए. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद वन मोर क्वेश्चन. सो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन. एंड द क्वेश्चन इज प्रूव दैट द फंक्शन is continuous at x is equal to 0, at x is equal to -3 and at x is equal to 5. ठीक है, तो एक एक पॉइंट को देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल विल ट्राई टू सी इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x is equal to 0. तो x is equal to 0 पे कंटिन्यूस है कि नहीं है वो देखते हैं. ठीक है, और इसमें सो विल ट्राई टू चेक कि वो फंक्शन कंटिन्यूस है इस पॉइंट पर नहीं है. तो पहले कैसे करते हैं, तो विल सिंपली पुट द वैल्यू इनटू द फंक्शन. हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एंड विल सी, है ना. सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, इफ द फंक्शन एग्जिस्ट एट द गिवन पॉइंट. ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, एफ एक्स फंक्शन को लिख लेंगे, एफ एक्स 5x - 3 एंड विल सिंपली पुट द वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या है, 0 है. सो f0 इज इक्वल टू -3. सो एज यू कैन सी f0 इज इक्वल टू -3. तो -3 इज ए रियल वैल्यू. ओके, एंड इट मीन्स दैट वैल्यू ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट एट द x इज इक्वल टू 0. तो x इज इक्वल टू 0 पर वैल्यू एग्जिस्ट करती है, वो -3 है. ठीक है, एंड जनरली ऑल द पॉलिनोमियल्स आर कंटिन्यूस इन नेचर. ठीक है, जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्लास 9-10 में. पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, सो पॉलिनोमियल्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं जिसमें द पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी अ होल नंबर ओनली. ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल जैसे ये है ax + b, स्टैंडर्ड बताया तो हम इक्वेशंस पॉलिनोमियल्स की. लीनियर इक्वेशन इज ax + b, क्वाड्रिक इक्वेशन इज ax² + bx + c, क्यूबिक ax³ + bx² + cx + d. तो ये सब पॉलिनोमियल्स हैं, और हायर ऑर्डर्स भी हम लिख सकते हैं. ठीक है, तो सारे पॉलिनोमियल्स जो होते हैं वो कंटिन्यूस होते हैं जनरली, लेकिन हम इसको फिर भी देखते हैं, ग्राफ बनाते हैं तो आपको दिख जाएगा, लेकिन हम इसको एल्जेब्रिकली प्रूव कर रहे हैं यहाँ पर. तो एल्जेब्रिकली तो इसमें फर्स्ट थिंग दैट वी हैव डिस्कस इज कि वो एग्जिस्ट करता है 0 पे. ठीक है, नाउ विल ट्राई टू फाइंड इट्स लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट. ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं. देखो ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन है. ठीक है, सो x टेंड्स टू 0 माइनस. ठीक है, 0 माइनस मतलब द वैल्यू विल टेक द वैल्यू जस्ट लेस देन 0, fx, एंड हियर वी हैव लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एंड विल पुट द
we'll simply write the function and now we'll put the value. ठीक है, so this will be 5 into 0 is 0, 0 minus 3 is minus 3. Okay, so we'll try to find the right hand limit now. So right hand limit will be left limit x tends to 0 plus. So 0 plus means the value at greater than 0. लेकिन greater than 0 का मतलब again I am saying वो greater than 0 का मतलब नहीं है कि 2 और 3 पे लेंगे. greater than 0 का मतलब है sorry 0.01, 0.001. so just greater than. ठीक है, and then we'll have a limit 0 plus 5x minus 3. Okay, and this will be 0 minus 3, so it will be minus 3 again. So left hand, as you can see, the left hand limit and right hand limits are both equal to each other, and the value of the function at 0 is also equal to minus 3. So we simply write limit of the function at x is equal to 0 is equal to f0. So what does it mean? It means the function is continuous as x is equal to 0. The function is continuous at x is equal to 0. इससे ये प्रूव हो गया. ठीक है, now similarly we'll try to find the value of the function and the continuity of the function at x is equal to minus 3. तो minus 3 पर देखते हैं. we'll simply follow the rule जो हमने अभी तक डिस्कस किया है. ठीक है, so first of all we'll see कि function exist करता है कि नहीं. ठीक है, so fx हमें given है, so f minus 3 will simply put the value. f minus 3 will be equal to 5 minus 3 minus 3. So minus 15 minus 3 is, it will be minus 18. Okay, and what else is given? So now we'll try to find the left hand limit of the function. So left hand limit will be limit x tends to minus 3 minus, so just less value less than minus 3, so just छोटी value. ठीक है, and this is fx here. Now we'll simply write the value. So 5 minus 3 minus 3, and that will be minus 18 again, and here we have right hand limit. Limit x tends to minus 3 positive fx. So fx is 5x minus 3 that is given to us. हम वही रखते जा रहे हैं, उसी में वैल्यू पुट करते जाएंगे. So there will not be any change in it. ठीक है, so 5 minus 3 and minus 3 here again, so it is minus 18 again, and as you can see the left hand limit and right hand limits are both equal to each other, as well as they are equal to the value of the function at the given point. Given point क्या है हमारा minus 3 है. ठीक है, तो the value of the function is equal to the left hand limit and right hand limit. So we'll simply write limit of the function exists, that is x tends to minus 3 fx, and so limit of the function exists as minus 3, and that is equal to value of the function at minus 3. ठीक है, तो इससे क्या प्रूव होता है? इससे प्रूव होता है कि हमारा the function is continuous at x is equal to minus 3. ठीक है भाई. Now let's move on, and here we will try to find the value of the function at the given point. तो एक और पॉइंट हमें दे रखा है. ठीक है, so we'll see that. अब हमें given है x is equal to 5. ठीक है, so let's try to find the value of the function at x is equal to 5. ठीक है, so इसमें first of all we'll see, पहले सबसे पहले हम क्या देखते हैं? we'll see that if the value of the function is, if the value of the function exists at x is equal to 5. ठीक है, x is equal to 5 पे निकालना है. the function is fx minus 3, sorry the function is fx is equal to 5x minus 3. ये हमारा फंक्शन है और हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है at x is equal to 5. ये हमारा क्वेश्चन है. ठीक है, so simply plug the value, put the value, substitute the value into the given function. So 5 into 5 minus 3, so 5 into 5 is 25 minus 3 is 22. Now we have limit x tends to 5 minus, that is left hand limit of the function. ठीक है, अब इसमें क्या रखेंगे? 5 and 5 minus 3, so this is 22 again, and simply we'll put the value into the right hand limit. So that will be 5 into 5 is 25 minus 3 is 22. ठीक है, so this is how we can change, this is how we can simply put the value and see if the given function is
continuous or not. So as we can see left hand limit is equal to right hand limit as well as equal to the given function. ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे इसको, सिंपली लिमिट x टेंड्स टू 5 fx is equal to f5. ठीक है, तो इसमें we can say that hence the given function is continued as, we can say hence the fx is continuous at x is equal to 0, -3 and x is equal to 5. ठीक है, so the given function is continuous at all the points. ठीक है, और वो जनरली होगा भी because it is the polynomial of the first type हमें दे रखा है, फर्स्ट polynomial दे रखा है, लीनियर polynomial जिसे हम कहते हैं वो हमें given है. जनरली the polynomials are of continuous in nature. ठीक है, continuous होते हैं वो. ठीक है, so I hope you have enjoyed and I hope you have get the logic of the question and आपको समझ में भी आया. So let's start with one more question. Second question. So in this question we have to examine the continuity of the function. ठीक है, so we'll examine the continuity of the function and we'll see if the function is continued at the given point. ठीक है, so let's examine the continuity of the function. ठीक है, so in this case as well we'll see first, we'll see कि function exist करता है given point पे नहीं. ठीक है, so we'll see that. तो first वही देखते हैं and we'll simply put the value into the given function. So at x is equal to 3, let's see, at x is equal to 3, f3 is equal to, ठीक है, so 2 into 3 square that will be 3 into 3 is 9 into 2 18 minus 1 is 17. ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे हम. Okay, so as we can see that this is also a polynomial function of second order, यानी quadratic function, quadratic equation है ये. So this will be continuous in nature but we will see कि algebraically वो, mathematically वो continuous है कि नहीं. तो first we have checked the function exists at the given point. अब उसकी left hand limit और right hand limit भी check कर लेते हैं. So left hand limit क्या है, देखो, limit x tends to 3 minus. So 3 minus means value just less than 3. So fx is equal to, so simply limit tends to 3 minus and fx हम रख देंगे 2x square minus 1. ठीक है, and in this we'll simply put the value 2 3 square minus 1. So 3 into 3 is 9 minus 2, 9 into 2 is 18 minus 1, 17 है here, तो 17 ही आ गया दोबारा से. So left hand limit is 17 and we'll see the right hand limit. ठीक है, fx limit x tends to 3 plus, here we have 2x square minus 1. okay, तो अभी हम इसमें वैल्यू रख देंगे and right hand limit is plus. ठीक है, right hand limit में प्लस होगा because the value is just greater than 3. so just greater than 3 का मतलब 3.001. ठीक है, तो ये बात ध्यान रखने की है कि just greater than की अगर हम बात करते हैं तो उसका मतलब 3 से बड़ी तो है लेकिन बहुत बड़ी वैल्यू की बात नहीं कर रहे. इवन we are not talking about 4, 5 or something like that. We are just talking about 3.001 value just greater than 3. Similarly if you are talking about value less than 3 तो उसमें भी हम just छोटी वैल्यू 2.999. ठीक है, so this is what you need to remember, है ना. और इसलिए हम 3 प्लस में भी 3 रख देते हैं और 3 माइनस में भी 3 रख देते हैं, यानी वैल्यू लेस देन 3 में भी 3 रखते हैं और 3 ग्रेटर देन 3 में भी 3 रखते हैं, क्योंकि बहुत स्मॉल इंक्रीमेंट है, जस्ट स्लाइट इंक्रीमेंट फ्रॉम द गिवन पॉइंट. ठीक, और स्लाइट डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट है ना. तो इसमें 3 रख देते हैं एंड 3 स्क्वायर माइनस 1, सो इट विल बी अगेन 17. ठीक है, तो 3 into 3 is 9 into 2 is 18 minus 1 is 17. ठीक है, as we can see here left hand limit, right hand limit and the value of the function at the given point is equal to each other. Now we'll see, we can see that the limit of the function exists as well as equal to the value of the function. So we'll simply write limit exists, that is x tends to 3 fx is equal to f3. So limit of the function exists as well as equal to the value of the function, hence we can say the function is continuous at the given point. Hence the function is continuous at given point. या फिर इसको given point की जगह x is equal to 3 लिख दीजिए.
ठीक है. So this is how we can solve this type of function, this type of question we can solve like this. ठीक है. And the questions are very easy. ठीक है. If you know the protocol, if you know the algorithm, अगर आप steps wise चलते जाएंगे, तो first of all we need to see if the function exists at the given point. Second, we need to see if the limit of the function exists. Third, we need to see if the function is if the function is equal to the limit of the if the limit of the function is equal to the value of the function at the given point. ठीक है. चलो स्टार्ट करते हैं वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम द सेम टॉपिक. और अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो. ठीक है. नाउ वी हैव एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी. ठीक है. सो वी नीड टू एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी. अब देखिए ये भी दोनों जो फंक्शन है, ठीक है, अब ये दोनों भी जो फंक्शन है, एज यू कैन सी द फर्स्ट फंक्शन इज पॉलिनोमियल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर. तो इसमें भी क्या है, देखो हमें एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी. तो जब हमें कोई भी पॉइंट नहीं दे रखा है, ठीक है, अगर हमें सिंपली पूछा है एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमें ऑल द रियल वैल्यूज के लिए चेक करना है. ठीक है. तो पूरी वैल्यूज के लिए चेक करना है. तो अगर हमें पूरा रियल वैल्यूज के लिए चेक करना है, तो रियल वैल्यूज आर गोज अप टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होती है. तो हम सारी वैल्यू पर रख के चेक करेंगे क्या? नहीं, हम सारी वैल्यू पर रख के चेक नहीं करेंगे. विल सी इफ देयर इज पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी अगर हमें कोई दिख रहा है, ठीक है, तो उस पर चेक करेंगे. और या फिर हम किसी पॉइंट के पे चेक करेंगे. अगर हम कोई भी पॉइंट के रख लेंगे या कोई भी पॉइंट कोई भी एक जनरल पॉइंट रख लेंगे, ए बी सी के, कुछ भी मतलब जनरल पॉइंट एक रख लेंगे, एंड विल सी दैट कि अगर उस पर हमारी वैल्यू कंटिन्यूस आती है, उस पर हमारे क्राइटेरिया, तीनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई होते हैं. लेट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट, लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट एंड द लिमिट्स ऑफ द फंक्शन एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल टू ईच अदर. तीनों क्राइटेरिया अगर सेटिस्फाई होते हैं, देन वी विल से कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है ऑल द रियल वैल्यूज के लिए. ठीक है. अब देखो इसमें तो पॉलिनोमियल गिवन है फर्स्ट केस में. ठीक है. अब इसमें देखो हम क्या करेंगे सिंपली. तो अगर हम एफ के रख दें, ठीक है, सो लेट्स टेक ए जनरल पॉइंट के. हमने कोई भी पॉइंट ले लिया, के ले लो, ए ले लो, सी ले लो, कुछ भी ले लो. ठीक है. जनरली बुक्स में सी ले लेते हैं, तो एनसीईआरटी में सी ले रखा है. ठीक है. कुछ बुक्स में के भी ले रखा है, सो विल टेक के. ठीक है. नाउ एफ के इज इक्वल टू के माइनस 5. ठीक है. तो इसका मतलब के माइनस 5 अगर कोई रियल पॉइंट हमने लिया है, रियल वैल्यू ली है, तो उसमें से कुछ अगर माइनस करेंगे, 5 माइनस करेंगे, सो इट विल बी अ रियल वैल्यू. ठीक है. और तो इसका मतलब हमारा फंक्शन एग्जिस्ट करता है. नाउ से लिमिट ऑफ द फंक्शन. तो लिमिट ऑफ द फंक्शन के लिए लिमिट x टेंड्स टू k x माइनस 5, सो दैट विल बी k माइनस 5. ठीक है. तो राइट हैंड लिमिट भी यही होगी और राइट हैंड लिमिट भी यही होगी और लेफ्ट हैंड लिमिट भी यही होगी. इसमें हमको कोई डाउट नहीं है. ठीक है. Now we'll see if now we can see that the value of the function at the given point as well as the limits of the function at the given points are equal to each other. तो हम simply write limit x tends to k fx is equal to fk. ठीक है. ये हो गया. इसका मतलब the function is continuous for all the values. Now we'll try to find if the given function is continuous for all the other values. तो अदर वैल्यूज के लिए मतलब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. सो ये ए पार्ट हमारा हो गया एंड ए पार्ट हमारा हो गया प्रूफ, और ए पार्ट हमारा कंटिन्यूस है फॉर ऑल द रियल वैल्यूज. अब बी को देखते हैं. ठीक है. बी को चेक करते हैं. ठीक है. एफ एक्स इजकल टू 1/x माइनस 5. अब इसमें देखो क्या कंडीशन है. इसमें फर्स्ट हम वही चेक करेंगे कि रियल वैल्यूज के लिए वो डिफाइन होता है कि नहीं होता है. तो देखो ये हमने x माइनस 5 को देख लिया कि वो हर एक पॉइंट के लिए, हर एक वैल्यू के लिए डिफाइंड है. ठीक है. तो इसमें अगर लेट एट x इक्वल टू k अगर हम बात करें, तो दिस विल बी एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x माइनस 5 एंड एफ के विल बी इक्वल टू k माइनस 5. ठीक है. एंड दिस वैल्यू विल बी अ रियल नंबर. ठीक है. तो इस मीन्स the value of the function exist at a point k. ये लेकिन कब एग्जिस्ट नहीं करेगा? इट विल नॉट एग्जिस्ट एट x माइनस 5 इज इक्वल टू 0. सो दिस फंक्शन x इज इक्वल टू 5 के लिए एग्जिस्ट नहीं करता. एंड इफ यू से द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, दैट विल बी इक्वल टू द 1/k माइनस 5 एंड उसमें
द फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी 1/k-5 ही होंगी, तो इसका मतलब वी कैन सिंपली राइट लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू k, ठीक है, fx इज इक्वल टू 1/k-5। तो इसका मतलब है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है और वो 1/k-5 तक है, ठीक है, 1/k-5 है। एंड उसके बाद हम ये भी लिख सकते हैं लिमिट x के fx यानी लिमिट ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू fk, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द गिवन पॉइंट k पर है, एक्सेप्ट फॉर x इज नॉट इक्वल टू 5, ठीक है। सो हम इसमें सिंपली राइट करेंगे सेंस द फंक्शन इज कंटिन्यूस, ठीक है, हम विल सिंपली राइट fx, hence the fx is continuous at x is equal to, hence the given function is continuous for all the real values at except at, hence the function is continuous for all real values except at x is equal to 5, ठीक है। तो सारी रियल वैल्यूज के लिए फंक्शन हमारा कंटिन्यूस होगा x is equal to 5 को छोड़कर। बात समझ में आ गई? चलो, वेरी गुड। नाउ वी हैव ए other function, we have a next question, and in this question what is given to us is, इसमें बताना है कि फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं। अब देखो इस क्वेश्चन में भी क्या है, दिस क्वेश्चन इज आल्सो पार्ट ऑफ द थर्ड क्वेश्चन, तो थर्ड का सी पार्ट है ना। एंड इसमें भी देखो वही सेम कंडीशंस दे रखी हैं। इसमें क्या करना है, देखो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा आगे सोल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसमें लिखते हैं, देखो इसमें सबसे पहले हमें देखना है कि डिनोमिनेटर कहाँ पर 0 हो रहा है, ठीक है। तो x + 5 इज इक्वल टू 0 अगर हम रख दें तो विल गेट x इज इक्वल टू -5। तो एक बात तो देखो इसमें तय है कि x इज इक्वल टू -5 पे ये फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, बिकॉज x इज इक्वल टू -5 पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस वैल्यू विल बी इनफाइनाइट, ठीक है। और इनफाइनाइट का मतलब नॉट डिफाइंड, ठीक है। सो दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड फॉर x इक्वल टू -5। बाकी किसी भी वैल्यू, बाकी इस फंक्शन को अगर थोड़ा और सोल्व करें, फर्दर अगर सोल्व करें तो x² - 25 को हम क्या लिख सकते हैं, सो वी कैन सिंपली राइट, तो अगर हम इसमें fx को अगर हम इसमें लिख लें x² - 25 को हम क्या लिख सकते हैं, इसमें हम इसको a² - b² का फॉर्मूला लगा सकते हैं, एंड ये हो जाएगा x - 5 और ये x + 5 है ना। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, एंड दिस विल गेट एलिमिनेटेड एंड इट विल बी x - 5 ओनली, ठीक है। अब x - 5 है हमारा, इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा हमेशा, तो x - 5 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, तो ये हमेशा कंटिन्यूस होगा, ठीक है। और उसको रख के चेक भी कर लेंगे एट इन पॉइंट। तो अगर हम fk पे चेक करेंगे तो fk पे इसकी वैल्यू क्या होगी, k - 5 होगी, ये हमने अभी देखा है, ठीक है। लिमिट्स भी लिमिट भी जो होंगी इसकी एट x इक्वल टू k क्या होंगी, k - 5 ही होंगी। तो इसका मतलब कि हमारा फंक्शन हर एक वैल्यूज के लिए कंटिन्यूस है, लेकिन वो x इक्वल टू -5 के लिए डिफाइन नहीं है सर, ठीक है। क्योंकि हमारा फंक्शन तो देखो यही है, fx इक्वल टू x² - 25, सो विल सिंपली राइट हेंस द फंक्शन fx इज कंटिन्यूस फॉर all the real values except at x is equal to -5, ठीक है। तो हर एक पॉइंट, हर एक वैल्यू के लिए डिफाइन है x is equal to -5 को छोड़कर, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलो, सो नेक्स्ट वी कैन ट्राई टू सोल्व द डी पार्ट, और डी पार्ट में हम कुछ इस तरह से ही करना है। सो विल यूज द सिमिलर टेक्निक, सिमिलर मेथड हम यूज करेंगे, एंड विल सी कि अगर वो फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है कि नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज और है, देखो इसमें फंक्शन में जब भी हमारा मोड आता है तो मोड का मतलब है द वैल्यू ऑफ द फंक्शन शुड बी पॉजिटिव इन एनी केस, ठीक है। अब पॉजिटिव होनी चाहिए हर केस में, देखो कैसे। अब हमें दे रखा है fx इक्वल टू x - 5, तो ये x - 5 का मतलब है x इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 5, ठीक है। x की वैल्यू आएगी 5, तो इसका मतलब 5 पे कुछ चेंज हो रहा है, 5 पे कुछ चेंज हो रहा है। तो अगर हम 5 से बड़ी वैल्यू रखते हैं, देखो आप ध्यान से देखो इसको, अगर 5 से हम बड़ी वैल्यू रखते हैं, सो अगर हम 5 पॉइंट समथिंग भी रखते हैं तो इट विल बी पॉजिटिव,
ठीक है। सो x माइनस 5 इज डिफाइंड फॉर x इज ग्रेटर देन 5। लेकिन अगर हम x से जस्ट छोटी वैल्यू रखते हैं, कितनी भी छोटी रखें, 4.999 भी रखेंगे, सो द वैल्यू द आंसर विल बी इन नेगेटिव। ठीक है, तो आंसर नेगेटिव में आएगा। एंड मॉडुलस का मतलब क्या है, मोड का मतलब क्या है, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन शुड बी पॉजिटिव इन एनी पॉसिबल केस। तो उसके लिए कंपनसेट करने के लिए नेगेटिव साइन को विल सिंपली पुट द नेगेटिव साइन जस्ट बिफोर इट, एंड दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर x लेस देन 5। ठीक है, तो ग्रेटर देन 5 और इक्वल टू 5 के लिए हमारा ये वाला फंक्शन डिफाइंड है x माइनस 5, क्योंकि अगर 0 भी होता है तो इट्स ओके, और अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो देन इट्स ओके फॉर x माइनस 5, बट x माइनस 5 नेगेटिव में नहीं होना चाहिए किसी केस में। तो उसके लिए टू कंपनसेट दैट नेगेटिव पार्ट विल सिंपली पुट ए वन मोर नेगेटिव बिफोर इट। ठीक है, अब हमारा ये फंक्शन है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि x इक्वल टू 5 पे क्या है, और अब हमारा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है, अब इसको इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी, मेथड वही है अभी भी। फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी कि फंक्शन एग्जिस्ट करता है पॉइंट पे नहीं। सेकंड विल सी कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है और वो इक्वल है एक दूसरे के नहीं। थर्ड कि लिमिट ऑफ द फंक्शन एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल है कि नहीं। ठीक है, वही 3 पॉइंट है, अभी भी नया कुछ नहीं है। सो अब 5 दे रखा है तो f5 रख देते हैं। ठीक है, f5 के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, x माइनस 5 डिफाइंड है, तो 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो 0 आ गया। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट, फर्स्ट क्राइटेरिया सेटिस्फाई। सेकंड हम लेफ्ट हैंड लिमिट रख के देखते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस, अब देखो 5 से जस्ट छोटी वैल्यू के लिए, जस्ट छोटी वैल्यू के लिए हमारा फंक्शन कौन सा डिफाइंड है, ये वाला। ठीक है, हमने ये रख दिया, तो 5 माइनस 5 अगेन 0, 0 माइनस प्लस तो कुछ होता नहीं, 0 0 होता है। ठीक है, फॉर राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस, अब क्या है, x माइनस 5 डिफाइंड है, तो x माइनस 5 में रखेंगे वैल्यू, तो इट विल बी 5 माइनस 5, तो ये 0 आ गया फिर से। तो इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 0 तो 0 ही है, पॉजिटिव और नेगेटिव से कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है 0 का। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट्स आर बोथ इक्वल टू ईच अदर एज वेल एज दे आर इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द x इक्वल टू 5। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई। ठीक है, अब हम इसको सिंपली लिख देंगे, लिमिट x टेंड्स टू 5 fx इज इक्वल टू f5। ठीक है, तो इसमें क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द वैल्यू, राइट हैंड लिमिट ऑफ द वैल्यू एग्जिस्ट एज वेल एज दिस इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द गिवन पॉइंट। ठीक है, तो हम सिंपली कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है फॉर ऑल द रियल वैल्यूज। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ कंफ्यूजन नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चंस हम करते जाएंगे एंड ऑल द थ्री क्राइटेरियाज वी नीड टू चेक एट। ठीक है, तो ऑल द 3 क्राइटेरियाज आर सेटिस्फाइड, सो वी नीड टू सी और इफ ऑल द 3 क्राइटेरियाज आर सेटिस्फाइड और नॉट, तो हम वही देखेंगे कि तीनों के तीनों क्राइटेरिया हमारे सेटिस्फाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, तीनों के तीनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम सारे क्वेश्चन करते जाएंगे, विल ट्राई टू सी इफ द फंक्शंस इज कंटिन्यूअस और नॉट एट द गिवन पॉइंट और ऑल द रियल वैल्यूज। ठीक है, तो अगर अब आप अभी तक आपने अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द वीडियो। ठीक है, और आगे चलते हैं एंड ट्राई टू सॉल्व वन मोर क्वेश्चन ऑन द सेम टॉपिक। चलो, नाउ हियर वी हैव प्रूव्ड द फंक्शन। तो इसमें फंक्शन अब हमें कुछ अलग से दे रखा है, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ना है क्योंकि हमें मेथड आ गया है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं वन मोर क्वेश्चन। अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी नीड टू सी कि हमें वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द गिवन पॉइंट। तो हमारा पॉइंट क्या है, हमारा पॉइंट x इज इक्वल टू n, और हमारा फंक्शन क्या है, यहाँ पर हमारा फंक्शन है x की पावर n। ठीक है, तो अगर इसमें fn रख देंगे, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन रख देंगे। ठीक है, तो fn विल बी n की पावर n। अब देखो n क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर दे रखा है, तो अगर पॉजिटिव इंटीजर की पावर पॉजिटिव इंटीजर है तो इट विल बी अ फाइनाइट वैल्यू, डिफाइंड वैल्यू होगी। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा फंक्शन जो है डिफाइंड है, फंक्शन एग्जिस्ट करता है गिवन पॉइंट। ये हमारी बात समझ में आ गई। चलो, वेरी गुड। नाउ विल सी द लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं भाई। देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट में रख देते हैं वैल्यू, लिमिट x टेंड्स टू n माइनस fx इज इक्वल टू, अब इसमें हमारा fx क्या है, देखो x की पावर n है, तो इसमें x की पावर n रखेंगे तो n की पावर n हो जाएगा। इसका मतलब लिमिट हमारी n की पावर n ही होगी। सिमिलरली फॉर राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू n प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू n प्लस। ठीक है, अब इसमें x की पावर n होगा और n की पावर n ही हो जाएगा। ठीक है, तो
अभी भी हमारे एज वी कैन सी हियर, अभी हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एज वेल एज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द गिवन पॉइंट x इज इक्वल टू n। ठीक है, अब x इज इक्वल टू n पे हमारी तीनों वैल्यू सेम आ गए, तो हम क्या करेंगे, विल सिंपली राइट लिमिट x टेंड्स टू n, ठीक है, fx इज इक्वल टू fn, ठीक है, और सिंपली विल राइट हेंस द फंक्शन fx, विल सी हेंस द fx is continuous at x is equal to n। ठीक है, तो इसमें हमें कंटिन्यूस प्रूफ करना था x is equal to n पे, और इसमें बस थोड़े से वेरिएबल्स हमें दे रखे हैं, कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है, बट द क्वेश्चन इज वेरी इजी। अगर आप लोगों को समझ में आ गया अब तक का सारा पार्ट, तो आप इसको भी आसानी से कर लेंगे, बिकॉज द क्वेश्चन इज वेरी इजी, ओनली द वेरिएबल्स आर इन्वॉल्व इन इट। ठीक है, तो उससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ना है हमारे लिए, x is equal to 5 और n में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिंपली वी कैन पुट द वैल्यू एंड गेट द रिजल्ट। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम द सेम टॉपिक। आप देखो क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपको बनाया गया है। ठीक है, इसमें क्या करना है, इसमें आपको फंक्शन गिवन है फॉर एक्स इज ग्रेटर देन 1 लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है, अलग अलग फंक्शन दे रखा है और हमें अलग अलग 3 पॉइंट पे इसको चेक करना है, और हमें बताना है कि क्या वो तीनों पॉइंट पर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो देखो इसको करते हैं कैसे कर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल ट्राई टू सोल्व इट फॉर x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 पे इसकी बात करते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। एट x इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करना है इसमें, देखो तो x इक्वल टू 0 के लिए हमारा कौन सा फंक्शन डिफाइन है, हमारा सिर्फ ऊपर वाला फंक्शन डिफाइन है, fx इक्वल टू x इज द फंक्शन। ठीक है, तो f0 के लिए हमारा कौन सा फंक्शन डिफाइन है, तो हमारा फंक्शन है fx इज इक्वल टू x। क्योंकि देखो इसमें फॉर fx इक्वल टू x ये फंक्शन डिफाइन है, लेकिन अगर हम fx इक्वल टू 5 लेते हैं तो दैट इज डिफाइंड फॉर x इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, लेकिन हम 0 की बात कर रहे हैं तो fx इक्वल टू x ही डिफाइन है। ठीक है, अब क्या करना है, सिंपली पुट द वैल्यू f0 इज इक्वल टू 0 एंड देन वी फाइंड द लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन। लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हम निकालते हैं, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे होंगी, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx इज इक्वल टू, और इसमें fx क्या है हमारा, fx हमारा x है, सो विल सिंपली पुट द वैल्यू एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, विल सिंपली पुट द वैल्यू फॉर राइट हैंड लिमिट। ठीक है, fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, एंड यहाँ पर x है, सो दिस विल बी 0 एज वेल। सो वी कैन सी दैट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0, ये हमारी fx हमारी f0 के इक्वल है। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू, ठीक है, तो fx इज इक्वल टू f0 एंड वी कैन से द वैल्यू इज द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, तो कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतना हो गया एंड नाउ विल सी द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज कंटिन्यूड एज x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस है कि नहीं है वो चेक करते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं एंड विल सी x इक्वल टू 1 पे क्या कंडीशन है। ठीक है, सो एट x इज इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं। अब देखो x इक्वल टू 1 के लिए हमारा कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, तो x इज इक्वल टू 1 के लिए हमारा x इक्वल टू 1 के लिए हमारा fx इज इक्वल टू fx है, सॉरी डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हमारा x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है, x इक्वल टू 1 पे डिसकंटिन्यूअस है। सो लेट्स सी एंड ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट अदर पॉइंट। तो अदर पॉइंट क्या है हमारा, x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 पे बात करते हैं। ठीक है, चलो x इक्वल टू 2 पे बात करते हैं भाई। ठीक है, एट x इक्वल टू 2। अब देखो इसमें कंडीशन क्या दे रखी है, देखो ध्यान से देखो, x इक्वल टू 2 के लिए, x इक्वल टू 2 के लिए हमारा सिर्फ 5 डिफाइंड है। ठीक है, तो हम 5 ही रखेंगे। चलो तो इसमें क्या करेंगे, f हमारा fx क्या डिफाइंड है, हमारा fx डिफाइंड है x इक्वल टू 5, सॉरी f है ना, हमारा fx क्या है 5 है। ठीक है, fx 5 है तो विल सिंपली पुट द वैल्यू f2 क्या होगी, ये भी 5 होगी, क्योंकि जब हमारा फंक्शन ही कांस्टेंट है तो उसमें कुछ भी रखेंगे तो कांस्टेंट रहेगा ना, है ना। अब बात करते हैं लेफ्ट लिमिट की।
तो अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, लेकिन 2 माइनस का मतलब ये है, देखो 2 माइनस का मतलब भी 1 नहीं होगा, 2 माइनस का मतलब भी वैल्यू जस्ट लेस देन 2, तो 1.99 है, ठीक है। तो उसमें भी ज़्यादा कुछ चेंज होगा नहीं। एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, और इसमें यहाँ पर क्या रखेंगे हम 5, so it will be 5 only, and this will be similar for right hand limit। राइट हैंड लिमिट में भी कुछ कहानी इस तरह की होगी, है ना। तो इसमें भी लिमिट 2 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 प्लस, एंड दिस विल बी 5, सो इक्वल टू 5 ओनली, ठीक है। अब यू कैन सी क्लियरली लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एज वेल एज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द गिवन पॉइंट। तो इसमें हम कहेंगे कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 पे हमारा कंटिन्यूस है, हेंस देयर इज ओनली वन पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, दैट इज x इक्वल टू 1, ठीक है। तो हम सिंपली राइट हेंस द फंक्शन f(x) इज डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1 ओनली, ठीक है। तो x इक्वल टू 1 पे सिर्फ वो डिसकंटिन्यूस है, बाकी सब पे वो कंटिन्यूस है, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन सोल्व, एंड दिस इज हाउ वी कैन ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शंस, द वैल्यू ऑफ द फंक्शंस एट द गिवन पॉइंट, एंड वी कैन डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शंस एट द गिवन पॉइंट्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं, हम सोल्व कर सकते हैं, एंड लेट्स ट्राई टू सोल्व वन मोर क्वेश्चन, ठीक है। लेट्स ट्राई टू सोल्व वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम द सेम टॉपिक। Now we have find all points of discontinuity of f, ठीक है। So here we need to find the all the points of discontinuity, सारे discontinuity वाले पॉइंट डिस्कस करना है। तो बेसिकली what we need to show here, तो हमें करना क्या है इसमें, बेसिकली हमें इसको यही बताना है कि कंटिन्यूस होगा किसी पॉइंट पे और डिसकंटिन्यूस होगा किसी पॉइंट पे, ठीक है। अब यहाँ पर हमें पॉइंट क्या दे रखा है, देखो ये हमारा जो 2x प्लस 3 है, 2x माइनस 3 है, ये पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल हमारे जनरली सारे पॉइंट पे, सभी पॉइंट्स पे कंटिन्यूस होते हैं, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट दे रखा है, तो ये 2 पे हमें डिस्कस करना है, तो विल सी कि वो 2 पे क्या करता है, बाकी सब पे पॉइंट पे तो वो कंटिन्यूस होगा ही, ठीक है। तो उसमें हम कंडीशंस क्या है, वही 3 लॉजिक, जो 3 फॉर्मूले वही हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। 3 स्टेप्स। तो द फर्स्ट स्टेप इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ठीक है। और x इक्वल टू 2 पे क्या डिफाइंड है, x इक्वल टू 2 पे हमारा फंक्शन क्या है, पहले वो लिख लो। x इक्वल टू 2 पे देखो हमारा 2x प्लस 3 है, ठीक है। और इसमें f2 जब हम रखेंगे तो f2 विल बी इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 3, सो इट विल बी 7, ठीक है। f2 इज इक्वल टू 7। अब हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की। लेफ्ट हैंड लिमिट की अगर हम बात करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, ठीक है। तो 2 से जस्ट छोटी वैल्यू के लिए एंड fx इज इक्वल टू, सो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, fx यहाँ पर क्या रखेंगे हम 2x प्लस 3, एंड विल सिंपली पुट द वैल्यू इनटू द गिवन पॉइंट, और 2 इंटू 2 इज 4, सो 2 इंटू 2 इज 4 प्लस 3, सो इट विल बी 7 एज वेल, ठीक है। फॉर जस्ट लेस देन 3, सॉरी फॉर जस्ट लेस देन 2, ठीक है। लेकिन हम जब राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, हम वैल्यू जस्ट ग्रेटर देन 2 की बात करते हैं, हालांकि बहुत छोटा इंक्रीमेंट है, बट है बहुत कम इंक्रीमेंट है, बट है। तो स्ट्रिक्टली वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रेटर देन 2, चाहे वो कितना भी छोटा 2 से इंक्रीमेंट है, लेकिन है। सो इसमें क्या करते हैं, fx लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, और इसमें fx क्या है हमारा 2x माइनस 3। सो वैल्यू देखो इसमें x ग्रेटर देन 2 के लिए हमारा 2x माइनस 3, तो ये बात ध्यान रखने की है, और यही हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो इसमें 2 इंटू 2 माइनस 3, सो 4 माइनस 3 इज 1, ठीक है। अब 4 माइनस 3 इज 1 हो गया, और इसमें वी कैन सी लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट ही राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, तो हमारा फंक्शन आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। विल सिंपली राइट लिमिट x टेंड्स टू 2 fx डज नॉट एग्जिस्ट, विल सिंपली राइट दैट, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। और द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होगा, द फंक्शन fx is
डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इजिकल टू 2। तो एक्स इजिकल टू 2 पे सिर्फ वो डिसकंटिन्यूअस है, वही हमें लिखना है। हमें सिर्फ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताने, तो सिर्फ एक्स इजिकल टू 2 पे वो डिसकंटिन्यूअस है, बाकी सारे पॉइंट्स पे वो कंटिन्यूअस है। ठीक, तो यही हमें सिर्फ बताना था, बाकी हमें कुछ इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करना था। पॉलिनोमियल है, कंटिन्यूअस हो गए, उसमें कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम द सेम टॉपिक। अब देखो इस क्वेश्चन में 2 पॉइंट हमें दे रखा है। देयर आर 2 पॉइंट्स गिवन टू अस, एक है x इक्वल टू -3 और एक है x इक्वल टू 3। तो भाई देखो पहले -3 पे चेक करेंगे, फिर 3 पे चेक करेंगे। दोनों अलग अलग पॉइंट है, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। दोनों अलग अलग पॉइंट है और दोनों में सेम लॉजिक हम ट्राई करेंगे। लॉजिक वही है भाई, पहले ढूंढो कि वो क्या एग्जिस्ट करता है पॉइंट पे। क्या करना है, सिंपली वैल्यू रखो। दूसरी बार लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ठीक है, उस पर रखो, चेक करो। थर्ड, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट क्या वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल है, तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है गिवन पॉइंट पे। कहीं पर भी कुछ भी गलत आता है, यानी वैल्यू फंक्शन के एग्जिस्ट नहीं करती, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों अलग अलग आती हैं, तो उससे आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, नहीं होता इक्वल तो डिसकंटिन्यूअस, सीधा सीधा लिख दो। ठीक है, तो चलो बात करते हैं x इक्वल टू -3 पे। पहले अगर हम -3 की बात करें तो देखो एट x इज इक्वल टू -3। अब -3 की जब हम बात करेंगे तो हमारा फंक्शन क्या है, हमारा फंक्शन फॉर -3 क्या है, इक्वल टू लेस देन के लिए हमारा ये वाला फंक्शन है। ठीक है, तो हमारा फंक्शन f(x) इज इक्वल टू mod of x प्लस 3 for x लेस देन -3 और -2x फॉर x ग्रेटर देन -3। तो ये हमारा फंक्शन है इन दो वैल्यूज के लिए। अब इसमें भी देखो ये mod x लगा हुआ है। mod x का मतलब है कि हमेशा वैल्यू हमारी पॉजिटिव आनी चाहिए। ठीक है, हमेशा हमारी वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, तो उसका भी देखते हैं। तो हमेशा वैल्यू पॉजिटिव आने के लिए हमें क्या करना है, देखो -3 है, -3 से छोटी वैल्यू रखनी है या इक्वल रखनी है। तो जब -3 रखेंगे तब तो हमारा ठीक है, -3 पे तो ठीक है, -3 प्लस 3 0, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन -3 से जैसे ही छोटी वैल्यू रखेंगे, है ना, -3 से जैसे ही छोटी वैल्यू रखेंगे तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, हमारा फंक्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा नेगेटिव में। जो mod x जो हमारा फंक्शन है वो नेगेटिव हो जाएगा। और mod x क्या कहता है भाई, नेगेटिव नहीं होना, नेगेटिव में वैल्यू नहीं जानी है किसी भी तरीके से, नेगेटिव में नहीं होना। ठीक है, तो जब -3 से छोटी वैल्यू रखेंगे तो -4 रखेंगे, -5 रखेंगे, कुछ भी रखेंगे, लेकिन वो कह रहा है नहीं जी पॉजिटिव वैल्यू रखनी है। ठीक है, तो वो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। अब देखो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए हमारा फंक्शन कुछ इस तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं पहले। ठीक है, -x प्लस 3 फॉर x लेस देन -3, 0 फॉर x इज इक्वल टू 0, है ना भाई, x इज इक्वल टू -3 पे 0 होगा, सिंपल बात है ना। और -2x कब होगा, x ग्रेटर देन -3। तो ये इस तरीके से हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। और इस तरीके से जब हम इसको ब्रेक कर लेंगे फंक्शन को, इस तरीके से जब हम इसको लिखते हैं कि नहीं जी इस वैल्यू पे ये है और इस वैल्यू पे ये है, तो हमारा फंक्शन थोड़ा सा सॉर्टेड हो जाता है, हमें थोड़ा सा अच्छे से समझ में आना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब इसमें हमारा तो सिंपली -3 पे तो हमारा 0 है। ठीक है, तो हमारा फंक्शन एग्जिस्ट तो करता है, f -3 इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब फंक्शन हमारा एग्जिस्ट करता है। अब बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की। तो जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो क्या होता है, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू -3 नेगेटिव और fx, तो कौन सा फंक्शन है, लिमिट x टेंड्स टू -3 और fx की जगह क्या रखेंगे हम यहाँ पर, -x प्लस 3। -x क्यों रखा है, बिकॉज देखो x में नेगेटिव वैल्यू नहीं रख सकते, है ना, मोड लगा हुआ है, नेगेटिव वैल्यू रखेंगे तो वो पॉजिटिव आएगा, तो उसको कंपनसेट दैट नेगेटिव पार्ट विल सिंपली पुट द वन मोर नेगेटिव साइन बिफोर इट। ठीक है, तो उसके लिए हमने एक साइन पहले से ही नेगेटिव लगा दिया, जिससे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाए। ठीक है, अब हमने क्या रखा है, -3 प्लस 3। ठीक है, सो इससे जस्ट छोटी वैल्यू पे अगर -3 ही रखेंगे तो इट विल बी 6 माइनस प्लस। ठीक है, राइट हैंड लिमिट की अगर बात करें, ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू -3 जस्ट ग्रेटर देन -3, तो जस्ट ग्रेटर देन वैल्यू रखेंगे तो इसके लिए हमारा फंक्शन ही दूसरा 2x है, सॉरी -2x है। लेकिन इसमें भी अगर -3 रखेंगे तो -3 इंटू -2 दैट विल बी 6 ओनली। ठीक है, अब हमारा देखो -3 पे तो 0 आ रहा है,
लेकिन -3 से जस्ट छोटी वैल्यू पे 6 आ रहा है, जस्ट बड़ी वैल्यू पे भी 6 आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा लिमिट तो एग्जिस्ट करती है और फंक्शन भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इसकी वजह से भी हमारा फंक्शन जो होगा लिमिट x टेंड्स टू -3 f(x) इज नॉट इक्वल टू f -3, ठीक है। लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट बस दैट इज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द गिवन पॉइंट, ठीक है। तो इसको कट कर दो, ये इक्वल ही नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी एक हो गया। x इक्वल टू -3 इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है। x इक्वल टू -3 इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। तो अब हम क्या करेंगे, विल ट्राई टू डिस्कस द अदर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो कि हमारा हो सकता है x इक्वल टू 3 पे, ठीक है। क्योंकि 3 एक और हमें से पॉइंट दे रखा है जहां पर कुछ चेंज हो रहा है। थ्री हमारा एक ऐसा पॉइंट है जहां पर कुछ चेंज हो रहा है, तो हम देखते हैं क्या चेंज हो रहा है, ठीक है। अब हमारा सबसे पहले हम फंक्शन लिख लेते हैं। देखो फंक्शन हमारा 3 के लिए क्या हो जाएगा, हमारा फंक्शन जो है वो कुछ इस तरीके से हो गया है। तो -2x for x less than 3 and 6x plus 2 for x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ठीक है भाई। अब क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, और हमें बताना है 3 पे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, f3 रख देते हैं, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द गिवन पॉइंट। तो f3 हमारा क्या होगा, f3 के लिए हमारा फंक्शन कौन सा है, 6, ये वाला फंक्शन है, ठीक है। 6x plus 2, तो f3 6 into 3 is 18 plus 2 is 20। अब बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की। लेफ्ट हैंड लिमिट की जब बात करते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस। अब 3 से जस्ट छोटी वैल्यू के लिए हमारा कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, हमारा फंक्शन डिफाइंड है ऊपर वाला कौन सा है भाई, हमारा फंक्शन डिफाइंड है -2x। अब इसमें देखो -2x में 3 रखेंगे तो 3 into 2 is 6, so that will be -6, ठीक है। इसमें किसी को डाउट है, नहीं है तो भाई अच्छी बात है तो पूछो क्या है। और उसके बाद राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस। अब इसमें 3 प्लस के लिए हमारा कौन सा फंक्शन है, 3 प्लस के लिए हमारा 6x plus 2 है। तो 6x plus 2 में वैल्यू रख देते हैं। देखो अब यहां रखेंगे 3 into 6 is 18 plus 2 is 20। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो यहीं से आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें सिंपली विल राइट लिमिट x टेंड्स टू 3 f(x) डज नॉट एग्जिस्ट। इससे ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है। हेंस वी कैन से दीज 2 पॉइंट्स जो भी हमें गिवन है, सो उस पे दोनों पे ही हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। हेंस x इक्वल टू -3 एंड x इक्वल टू 3 दोनों ही पॉइंट हमारे आर द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है भाई, आया समझ में? किसी को कोई डाउट हो तो बोलो, डाउट नहीं है तो अच्छी बात है, डाउट है तो बोल दो क्या है। चलो स्टार्ट करते हैं वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम द सेम टॉपिक। अब इसमें देखो क्या है, अब what we need to find here is point of discontinuity. We need to find all the points of discontinuity where f is defined by। तो सारे पॉइंट बताना, इस पर डिसकंटिन्यूस नहीं है, ठीक है भाई। चलो देखते हैं। अब देखो इसमें एक चीज और है कि हमें पॉइंट क्या दे रखा है, 0। अब फॉर x इज लेस देन 0 के लिए हमारा ये वाला फंक्शन डिफाइंड है फर्स्ट वाला, और ग्रेटर देन 0 के लिए भी यही डिफाइंड है, लेकिन इक्वल टू 0 के लिए हमारे 0 दे रखा है, ठीक है। तो हमने जो हमें फर्स्ट कंडीशन है, हमें जहां पर f0 रख के जो पॉइंट है उस पर वैल्यू रख के चेक करनी होती है, तो वो हमें 0 दे रखा है, उसको हमें कुछ नहीं करना है। नाउ वी नीड टू चेक द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट अदर पॉइंट, कौन से, यहाँ पर ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0, ठीक है। अब क्या करना है देखो, तो इसमें ध्यान से देखो, तो ये mod x है, और mod x का मतलब क्या है, हमेशा वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। तो जब हम वैल्यू ग्रेटर देन 0 रखेंगे तो पॉजिटिव रखेंगे, तो जब पॉजिटिव रखेंगे तो हमें मोड लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव तो पॉजिटिव है ही, ठीक है। लेकिन उसने कहा मोड लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि जब नेगेटिव रखेंगे तब भी वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। और नेगेटिव को पॉजिटिव करने का सिंपल सा लॉजिक ये है कि नेगेटिव साइन एक्स्ट्रा लगा दो, तो नेगेटिव विल बी पॉजिटिव, ठीक है। तो बात समझ रहे हो ना आप लोग। इट विल बी -x
अगर अपॉन एक्स फॉर एक्स लेस देन 0, है ना, एक्स अपॉन एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन 0। अब देखो ये हो गया -1 और ये हो गया 1। बात समझ में आई आपको? चलो दोबारा रेड पेन से करके दिखाता हूँ। ये हो गया -1 और ये हो गया 1। बात समझ में आई? तो इसमें इससे क्या मतलब है? इससे मतलब है कि हमारा जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या होगी, हमारी ग्रेटर देन 0 के लिए अलग होगी और लेस देन 0 के लिए अलग होगी। ठीक है, तो इसमें हमारा फंक्शन की वैल्यू तो एग्जिस्ट करती है, 0 है, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट की हम जब बात करेंगे, जब हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स। तो हमारा जो एफ एक्स है, जो हमारा एफ एक्स है वो लेस देन 0 के लिए क्या है? -1 है। तो -1 में जब 0 रखेंगे तो उससे कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि कांस्टेंट में आप वैल्यू पुट करो तो क्या है, कांस्टेंट में वैल्यू पुट कर ही नहीं सकते, तो जो है वही रहेगा, तो -1 है। और यहाँ पर अगर राइट हैंड लिमिट की हम बात करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस है एफ एक्स। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, और यहाँ पर जो है वो वैल्यू 1 है, तो अब ये कहोगे 1 होगी। अब देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो जब लिमिट ही एग्जिस्ट ही करती है तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इसमें सिंपली राइट करो लिमिट ऑफ द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट x टेंड्स टू 0 रखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। इससे क्या प्रूव होता है? इससे प्रूव होता है द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो हेंस एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूड एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, तो ये हमें प्रूफ करना था, ये हमें प्रूफ कर लिया। एंड दोस्तों, सो इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस अप टू क्वेश्चन नंबर 8। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस मोर अबाउट द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर। ठीक है, तो देयर आर 34 क्वेश्चंस, वी विल डिस्कस ऑल ऑफ देम। ठीक है, सो प्लीज डू वॉच द नेक्स्ट वीडियो फॉर मोर क्वेश्चंस फ्रॉम द सेम टॉपिक। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम क्लास 12th पर्सपेक्टिव, और आप इसको वीडियो को कंटिन्यूटी में देखें। तो फर्स्ट वीडियो जो है उसमें अप टू 8 वी हैव सोल्व, उसके बाद हम बाकी क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो विल ट्राई टू सोल्व अप टू 20। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वीडियो विल ट्राई टू सोल्व अप टू 34। ठीक है, और इस कमेंट करके बताओ कि आपको एक ही वीडियो चाहिए, 2 चाहिए, या जैसे भी है। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर नाउ एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे।